Hello, hi, and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today on our guest list is someone who calls herself an expression queen. I'm talking about Anaya Soni, and let's just welcome her online and get to know more about her and her journey till now. Yes, Anaya is. I'm just going to add her online. Hi, hello, Ankush, hello, Fitness Studio, hello, everybody who has joined. And I'm sure that you and I would be there. Hello, Yade, Woo Yade. I don't know some names, I just can't read. Hi, Anaya, how you doing? Hey, I'm doing great. How are you? I'm good too. I'm good too. Hope you can see me clearly. Just, Can you? yes, I can see you clearly, but you need to just keep that, yeah, mobile, yeah, right. Can you see me clearly? Yes, I can. I can. Yeah. You're Yeah. looking good. Thank you. Thanks. So अनाया टेल मी कैसे जा रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड लाइक क्या आपने इस लॉकडाउन पीरियड में नया किया जो Give आपने me पहले टाइम just a second. Just a second. ओके ओके hello everybody who has joined hello Dinesh hello everyone hello Mr. Rajgor I'm just trying to read the names some names are so peculiar I just can't read them hello Yash Raj yes There was some hello issue in Kamlesh. signal. Okay, Yeah. okay. Is that all good now? Yeah, yeah. It's all good now. Yeah, tell me. Uh, yes. So tell me, how's your lockdown period going? आपने ऐसा क्या नया किया lockdown period में जो आप अभी तक नहीं कर पा रही थी because of lack of time? Generally we say कि यार time नहीं था तो नहीं कर पाए. तो अब lockdown में तो ये टाइम बहाना की भी भी नहीं कमी चलेगा. होती है, कुछ आलस भी होता है। कहते बहाने वही Time तो बनाते बहुत, yeah, yeah. Carry कहते on. बहाने वही बनाते हैं जिनको वो काम करना नहीं होता है। ऐसा मैंने I सुना है agree. कहीं पे। Yes, like So priority पे yeah, नहीं होता तो इसलिए बहाने होते हैं. right. Hmm. So it's just that ki I started doing Surya Namaskar with one of my friend who always go live and teaches Surya Okay. Namaskar. तो मैं आजकल दिन में 80 कभी 100 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ और मतलब it's amazing Oh my feeling, God, amazing energy. 80 to 100 Surya Namaskar. That's amazing. That's a Yes, great feat. So, I'm sure you must have lost a lot of weight also, from that. I've lost 5 kg. I think जो लोग struggle कर रहे हैं weight loss के लिए तो उनको पता होगा 5 kg भी weight loss करना कितना Yeah. बड़ा एक किलो yeah. एक किलो कम करना कितना मुश्किल होता है you're talking about And 5 kg. Yeah. And I'm feeling more fitter, more, my body is Yes. tight, like it's just cellulite दिखते हैं, so Yes. now it's not showing. And Yeah. I'm feeling more tighter, like muscle mass बहुत gain हुआ है मेरा. You're looking Muscle very fit mass now. में convert किया मेरा weight. Okay. Okay. That's amazing. That's amazing. और तो I'm sure you actually आपने fitness की और ज्यादा ध्यान दिया इस lockdown period में. True, yeah. Yeah. Okay. So, apart from that, और क्या किया आपने? Anything else that you thought? या मुझे हमेशा राइटर्स को देखकर या कोई अच्छी अच्छी चीजें लिखता था तो मुझे लगता था क्या मैं भी ऐसा लिख पाती हूँ, क्या Okay. मैं भी ऐसा लिख सकती हूँ. Hmm. तो वो एक चीज आई रियलाइज कि आई डिस्कवर्ड दैट आई रियली राइट गुड, लाइक डिसेंटली गुड. Okay. ऐसा नहीं कि बहुत बेहतरीन कि मैं सारे राइटर्स को मात दे दूंगी. या डिसेंटली गुड आई राइट. आई Hmm. स्टार्टेड राइटिंग. तो आपने अपने अंदर के जो राइटर को पहचाना और आपने राइटिंग शुरू की तो ये इसके बारे में आप सोच के रखिएगा हम बीच में आपसे जरूर पूछेंगे कि आपके एक दो जो भी आपने लिखा उसके बारे में विल डेफिनेटली आस्क. हाँ, लेकिन उसके पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आई एम वेरी मच नेव इन राइटिंग. आई एम वेरी That's मच okay. इमेच्योर, सो Yeah, that's या. okay. That's okay. It's like, basically it's about, finding yourself. आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है. Generally what ट्रू. I believe that, सिर्फ एक टैलेंट नहीं होता हर इंसान के अंदर. Generally 2 या 3 definitely होते हैं. It's just that, we need to find that out. और फोन का यही Yeah, no worries. प्रॉब्लम होता है, हम किसी को बोल नहीं सकते कि हमको कॉल मत करो. I
I think we can what we can do is like Wi-Fi में अगर आप airplane mode में डाल दें उसको, then that works. Okay, I'll do it. Just a second, I'll do it. Yeah. So thank you everybody who has joined. Thank you from Bhushan ji who has joined. So I just hope. Hello Megha. Hello Yash, Prince. Hello everyone. So I'm like, even if I can't read the name, hello. Yes, good. So all done. No disturbance now. No disturbance. No now. disturbance. No, Yes. not at all. Okay. So tell me this, like ये तो आपने find out किया. Tell me about your journey. आपने journey कहाँ से start करी? How did you find those inspiration that you always wanted to be an actor? एक्चुअली ना बचपन से ना मुझे ड्रामेबाजी का बड़ा शौक है. आई मीन ऐसे होते हैं ना बच्चे जिनको अटेंशन मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है उनको. तो मैं हमेशा से वो बच्ची रही हूँ, ऐसा मैंने रियलाइज किया. लोग इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, कभी बोलते हैं अटेंशन सीकर, ये वो. अटेंशन सीकर इज टोटली डिफरेंट. एक ऐसा बच्चा जिसको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई उसे प्रोत्साहित करे. तो होता ये था कि कहीं अगर डांस कंपटीशन है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट. एंड कहीं कुछ है लाइक कुछ ऐसा, कोई ड्रामा है, कोई फैशन शो है, सो आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट. और बचपन से मुझे अटेंशन मिली है. मतलब बिफोर बीइंग ए एक्टर भी मैं खबरों में रही हूँ अमरावती में. सो आई वाज मिस अमरावती, मिस महाराष्ट्र, मिस बेस्ट स्माइल. सो या. So you got like basically those attention seeker. ऐसा होता है like you want to do something and you want to show your talent basically. You want to show कि मुझे ये आता है तो मैं जैसे कई लोग हैं उनको डांस अगर जैसे करना होता है तो वो बोलते हैं मैं डांस करूं क्या, इसमें मैं डांस करूं. I've seen that people want to show that they have that talent. Yeah. एंड मैंने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो मेरे पेरेंट्स है लाइक माय मॉम एंड डैड, तो मेरी मॉम का ऐसा होता था कि कहीं कोई कुछ चल रहा है, जैसे बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात को, जैसे कहीं कोई डांस चल रहा है और अचानक से बोला कि पब्लिक में से कोई आके डांस करो. सो माय मॉम विल बी पुशिंग मी ऑन द स्टेज कि तू जा, तू कर. एंड शी इज स्टिल लाइक दैट. शी इज स्टिल लाइक दैट. Okay. थैंक यू. That's amazing. मतलब yeah, people are saying that they are a big fan of you. बीच में कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं and thanks for all those जो मुझे भी बीच में आपकी जगह थोड़ा मुझे भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. आपको तो कॉम्प्लीमेंट आ ही रहे हैं. अरे obviously you are a beautiful girl. So tell me like from where, so you were Miss Amravati also. आपने ब्यूटी पेजेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो कहाँ से like आपने your parents supported you that you when you told them that you wanted to be an actor, तो कहाँ से फर्स्ट ब्रेक आपको कौन सा मिला? इनिशियली तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ऐसी बच्ची रही हूँ, ऐसा कहते हैं ना कि हमारे परिवार में सबसे अलग है, तो मेरी चॉइसेस हमेशा सबसे अलग रही है. लाइक अगर मेरी सिस्टर को शी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर बीइंग अ डॉक्टर, बट मेरा ध्यान हमेशा मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, मुझे ब्यूटी पेजेंट करना है, मुझे एंकरिंग करना है. मतलब आर्ट की तरफ इतना एक्सट्रीम लेवल पे था कि मैं गाना गाऊंगी, कुछ भी करूंगी, भले ही बेसुरा गाऊंगी पर गाऊंगी. तो बेसिकली अमरावती में एक पेजेंट हो रहा था मिस अमरावती नाम से. सो आई थिंक इट वाज इन 2009 और 2010. तो आई थिंक इट वाज इन 9. तो पेजेंट हो रहा था, तो मैंने उसकी न्यूज देखी एंड आई टोल्ड माय फादर मुझे ना ये करना है पप्पा. तो बोले नहीं, हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती, हम लोग मारवाड़ी है और समाज क्या बोलेगा. मैंने कहा तो क्या हुआ, आप मेरे साथ चलो. मैंने हमेशा कभी अपने पेरेंट्स को अपोज करके या झगड़ा करके कोई काम नहीं किया. उनको हमेशा मना कर मैंने काम किया. ये मेन चीज थी. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये करना है, तो बोले नहीं मत कर. मैंने कहा अगर आप मेरे साथ चलो रिहर्सल पे, अगर आप गंदा लगे ना, आप मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे लेकर आ जाना. तो मेरे पापा चले, उनको कुछ गलत नहीं लगा. और फिर मैंने कहा अब मुझे रोज छोड़ने आओगे, तो बोले नहीं अब तो खुद अकेले आ जाना. तो बेसिकली मैं कन्विंस्ड कि ये बुरी चीज नहीं है. जनरली क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जो कहीं से कोई न्यूज अगर कोई सुन ले या कुछ, उसमें तो एक धारणा बैठ जाती है कि नहीं ये तो अच्छी लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां इधर नहीं जाती. ऐसा होता था आई थिंक पहले के टाइम पे. ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो आर्ट्स में
बहुत ज्यादा लड़कियों को नहीं पसंद किया जाता था। जनरली डॉक्टर, इंजीनियर, बस 2-3 चीजें ही होती थी जिसमें वो पेरेंट्स बोलते थे ये आपको करना है, राइट? राइट। या सो वही है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित दिया। देन आई बिकेम अ फैशन डिजाइनर। तो मैं फैशन डिजाइनिंग जब कर रही थी तो मेरा बुटीक मैंने अमरावती में डाला हुआ था। तो उस बुटीक की डिजाइन्स मैंने एक पेजेंट्स में दी थी। तो वो पेजेंट था मुंबई का, जो अमरावती आया था, जिनकी कॉस्ट्यूम की बैग मुंबई छूट गई थी। एंड फॉर्चुनेटली दे गॉट ऑल द डिजाइन्स मेरे पास। तो दे ऑफर्ड मी कि हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आप प्लीज आके हमारे पेजेंट में डिजाइनिंग कीजिए, बिकॉज यू आर स्मार्ट। या तो उनको लगा आई एम उबर स्मार्ट विदाउट लर्निंग एनीथिंग, विदाउट लर्निंग फैशन डिजाइनिंग, आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट डिजाइनिंग। उन्होंने ये प्रपोजल दिया। देन आई केम टू मुंबई। जब मैं मुंबई आई तो मेरी इंटरेक्शन इंडस्ट्री के लोगों से हुई। वो हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट जहाँ होता है। देन मैं साइड बाय साइड एक ये कर रही थी, डिजाइनिंग प्रोजेक्ट कर रही थी। तो मुझे एक फिल्म का प्रोजेक्ट मिला जिसमें मैंने डिजाइनिंग शुरू किया। सो बेसिकली व्हेन आई डिड डिजाइनिंग फॉर देम, तो जब मैं उनको कपड़े मतलब सौंप रही थी कि आपके ये कपड़े, वो कपड़े, वो कपड़े ऐसे, तो उन्होंने बोला कि अनाया तुम एक्टिंग करोगी? हाँ करूंगी, लेकिन रोल अच्छा होना चाहिए। मतलब पहले से अच्छा चाहिए, मतलब मैंने किया कुछ नहीं था, बट मुझे लीड रोल चाहिए था। तो बोले भाई हीरोइन का रोल ऑफर कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम करोगी? तो राजस्थानी फिल्म थी बेसिकली, माय फर्स्ट फिल्म, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम था दंगल। सो दैट माय एज अ लीड हीरोइन मैंने फर्स्ट फिल्म की थी। उसके पहले मैंने कोई कैमरा फेस नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। वो मेरा नसीब भी था, ऐसा भी बोल सकते हैं। और क्योंकि मैंने ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते हुए थे तो उसकी फोटोग्राफ मेरे पास थी। और उन डायरेक्टर को ये पता था कि मैंने क्या कहते हैं, फोक डांसिंग मुझे बहुत अच्छे से आता है। आई एम अ फोक डांसर, राजस्थानी फोक डांसर। या सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर मुझे लगा कि यार फैशन डिजाइनिंग में मेरी जर्नी नहीं है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सारी अटेंशन, पीछे से एक लेडी चल रही है आपकी शॉल पकड़ के, पीपल आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम पीपल, पीपल आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम पीपल, like you know the bodyguards are protecting you from people, and लोग बोल रहे हैं कि oh my god, I want to meet this heroine, I want autograph. मैंने कहा this is what I want and this is what I deserve. Basically you got your calling from there, बोलते हैं ना कि भाई okay great. तो बोलते हैं ना डेस्टिनी आपकी जो है ना वो आपको पकड़ ही लेती है। हाँ, it's just that you have to be on the right track, आपने फिल्म लाइन में कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बैठा था और वहां से आपको आपकी डेस्टिनी ने खींच लिया, so basically you need to be on the right track. So you got your first film Rajasthani film. उसके बाद then you got serials के आपको ऑफर आने लगे, right? और कहते हैं ना कि असली स्ट्रगल तो तब शुरू हुआ मेरा। अच्छा। कि जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया, आई रियलाइज समथिंग। जब कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में होता है ना, तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आपको ऐसा लगता है ये तो मेरा है, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली करते हो। तो इस जर्नी से मैंने ये सीखा। तो जब मैं मेरा फर्स्ट ऑडिशन देने गई, इट वाज अ माइथोलॉजिकल शो का ऑडिशन, एंड यू नो हाउ माइथो इज, लाइक पुत्र, ये रास्ता आपके लिए उचित नहीं है पुत्र। तो ऐसे करके बहुत बड़ी सी स्क्रिप्ट मुझे मिली। मैं 4 घंटे तक वहां बैठी रही एंड मुझे लर्न ही नहीं हो रहा था। इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई वॉज स्वेटिंग एंड आई वॉज सेइंग पीपल कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। मैंने अपने आप को इतना अनकॉन्फिडेंट कभी महसूस नहीं किया। तो बेसिकली आफ्टर डूइंग मूवी ऑल्सो, देन माई स्ट्रगल स्टार्टेड, देन द थिंग स्टार्टेड, देन द रियल जर्नी स्टार्टेड, then I started exploring myself more better. और अभी मैं सच बात बताऊं, जो मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था वो माइथोलॉजी का था, और मेरी हिंदी से मुझे डर लगता था। जिन जिन चीजों से मुझे डर लगता था ना, मैं उसी में एक्सपर्ट हूँ। ग्रेट। तो आपको वो माइथो सीरियल मिला या आपने फिर उसको वो उसको ओवरकम मिला नहीं। मिला नहीं तो यू रियलाइज हिंदी यू रियलाइज Yeah, I realized, then I started reading Hindi books and I started reading Hindi newspaper. हिंदी मेरी अच्छी थी क्योंकि मेरा जन्म विदिशा का है,
लेकिन होता है ना कि कोई शब्दों पे कमांड होना बहुत जरूरी है आपकी। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये भाषा आती है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इज रिक्वायर्ड। भले ही आपको लैंग्वेज आती हो नहीं है, आप अगर कॉन्फिडेंट हो ना तो आप परफॉर्म कर सकते हो। Yes, and you know what, and you should have that zest also, कि भाई हाँ अगर ये नहीं अभी नहीं है, तो जैसे you said that जिस चीज पे आपकी पकड़ थोड़ी कम थी, you just worked on that और आपने उसको अच्छा किया, जैसे हिंदी थी। तो उसके बाद क्या, लाइक you realized कि ये माइथो तो फिलहाल मैं नहीं कर सकती, उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट किया? उसके बाद मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे कहा, नो डाउट आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई एम रियली वेरी लकी, आई एम अ लकी गर्ल। तो they have pushed me more into Mytho. They were like कि नहीं, तुझे सारे ऑडिशन देने पड़ेंगे, तुझे सारे ऑडिशन देने पड़ेंगे, तू चल रही है हमारे साथ, तुझे चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसा था, एकदम सही कहा आपने, राइट। तो बेसिकली ऐसा था ना कि उन्होंने भी मुझे पुश किया, मैंने भी खुद को पुश किया, और वोंट बिलीव, मैंने दिन भर में 10 ऑडिशन दिए हैं। मैं 8:30 बजे तक के रेडी हो जाती थी, खाना वाना खा के 9:30 बजे अपने घर से बाहर निकल जाती थी मैं। और मैं दिन भर में 10 ऑडिशन देती थी, और ऑडिशन ही मेरे टीचर है, मैंने कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं की। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज वो ना एक ऑडिशन में भी 1 से 2 घंटा तो मिनिमम लगता ही है। आप कितना भी लाइक जाके बोलो कि सर पहले हमारा कर लो या कुछ कर लो, कुछ नहीं होता है, तो आपको मिनिमम 1 से 2 घंटे बैठना पड़ता है। और उसके बाद मतलब आपको बोल दिया जाता है कि आई थिंक यू आर नॉट फिट फॉर द रोल, बहुत सारी चीजें। सो यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स फॉर दैट, कि जो ये बोलें कि अरे यार ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो और आने वाला है, somebody to guide you, somebody to support and motivate you. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग आपको नीचे गिराने वाले भी दिखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री और मुंबई आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप मुंबई में हो तो आप सबसे पहले रिजेक्शन आप बस पकड़ने से ही सीख सकते हो। टाइमिंग का खेल है, 1 मिनट लेट हुए बस ही आपको रिजेक्ट करके चले जाएगी। ऑटो वाले आपको इतनी बार रिजेक्ट कर देते हैं कि आप तो बेसिकली जो सबसे बड़ा सबक जो सीखते हैं ना इससे, वो यही है कि आपको रिजेक्शन सीखनी है। जिंदगी में भी, इंडस्ट्री में भी, या कोई भी प्रोफेशन में आप हो, अगर आपने हार के, जो आई थिंक शाहरुख खान जी का डायलॉग था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो एक्चुअली वही है कि अगर आपने वो रिजेक्शन को, ऐसे कहते हैं ना, श्री रविशंकर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप हर चीज को एक्सेप्ट करो, अच्छी हो या बुरी। देन अगर बुरी चीज है, देन डिसाइड कि उस चीज का क्या करना है लाइफ में। अब मुझे क्या करना है, नाउ अब कोई इंसान अगर बुरा है तो अब मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या मैं इसको सुधार सकती हूँ या मुझे इसको छोड़ना ही ठीक का रास्ता रहेगा। And one more thing is there कि वही ये जो आप it's very important to actually analyze all these, क्योंकि क्या होता है जनरली जैसे आपने बोला, लोग एक दूसरे को मतलब पुल करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण बहुत लोग सैड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आई थिंक what we need to do is अपने आप को नेगेटिविटी से सेपरेट कर लो। जहां पे नेगेटिव लग रहा है वहां से you just separate yourself। अपने आप को कोशिश करो कि उन्हीं लोगों के साथ रखो जो पॉजिटिव रहते हैं और जो दूसरों को भी रखते हैं। मैं तो कभी कभी हम लोगों को, अभी जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, मैं बहुत से लोगों को ऐसे मिलती हूँ जो हमेशा दे फोकस ऑन द रॉन्ग साइड, इन द नेगेटिव साइड, बिकॉज वो उनका बेसिक नेचर है। आप उनको एक बार समझा सकते हो, आप 2 बार समझा सकते हो, लेकिन आप उनका नेचर नहीं बदल सकते। तो इट्स रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट दैट यू योरसेल्फ बी मोटिवेटेड। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, हर एक इंसान, देखो बोलते ना, एवरीबॉडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल इनसाइड। इफ समवन इज स्माइलिंग डजंट मीन दैट दैट पर्सन इज रियली दैट हैप्पी, बट दैट पर्सन इज अ फाइटर। वो लड़ रहा है एक एक चीज से, और हर एक इंसान जूझ रहा है, तो हम कोई जजमेंट नहीं रख सकते इस पे।
एक्चुअली अगर हम ये बोले कि भाई उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू इन व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, और राइट किसी और लाइफ में हमें नहीं पता। टिल द टाइम वी फेस द सेम चैलेंजेस, वी डोंट रियलाइज कि भाई वो चैलेंज है इतना बड़ा, हमें लगता है यार तो क्या हो गया, सो व्हाट। बट जब हमारे साथ वो सेम चीज होती है, देन वी रियलाइज नहीं यार ये तो बहुत ही ऐसा था। एक बुखार भी आया था तो we tell the stories, यार इतना बुखार आया, मैं उठ के बैठ नहीं पा रहा था, and all those things. So ठीक है, वो होता है ना, अपनी अपनी सहन शक्ति होती है, अपना अपना पेशेंस लेवल होता है, आप जज नहीं कर सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगों को, सॉरी टू ब्रिंग दिस टॉपिक, आई मीन आई डोंट नो, वी आर गोइंग आउट ऑफ इंटरव्यू, आई डोंट नो if we are going, are we going out of the, no, you want to say, you can say, definitely, yes. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे मैं लोगों को देखती हूँ ना, जैसे अगर मैं आपकी अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो लोगों को क्या एटीट्यूड होता है ना, ऐसे बोलते हैं यार ये तो कुछ नहीं, मैंने तो ये फेस किया है, ये तो कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता, ऐसे तो सबके। बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। कभी कभी लोगों को राय नहीं चाहिए होती आपकी, कभी कभी लोगों को जस्ट एक सुनने वाला इंसान, समझने वाला इंसान चाहिए होता है। सो बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू हेल्प समवन, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, सुशांत सिंह, ये वो, लॉट ऑफ मेनी थिंग्स। तो अगर आप इनको सुन भी लो ना, तो उनको सेटिस्फेक्शन देता। आपको जरूरी नहीं हर चीज पर राय देनी है, बस सुन लो और सॉल्व भी करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है, सुनो। I so agree with all the points that you have mentioned. मतलब जो भी whatever you are saying, ये मेरी खुद की राय है, मैं खुद भी शायद यही सोचती हूँ, and I agree 100% on that. जो भी whatever you are saying, it needs to be like it needs patience to be a good listener, and one should be that. अगर कोई बता रहा है आपको, तो definitely वो आपका बहुत आपको क्लोज मानता है और इसीलिए आपको बता रहा है, So let's coming back to the fun part of this interview. So we want to know more about your childhood. आप I'm sure जो जितनी अच्छी बातें आप कर रही हैं, उतनी शरारतें भी आपने करी होगी बचपन में, और बहुत मस्ती करी होगी। शरारतें तो मेरी बहन अभी भी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, one of the person is but in Mumbai, but in Mumbai don't want to open up. Yeah, tell me. So you tell me, बचपन में आपने ऐसी कौन कौन सी शरारतें करी थी जो अभी भी आपको याद है, या जो उस टाइम पे हो सकता है आपको डांट पड़ी हो या मार भी पड़ी हो, बट आज उसके बारे में सोच के यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आप हंसते हो? यार बचपन में ना कैसे था ना, मैं एक ऐसी बच्ची रही हूँ जो, मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं अभी भी बहुत सेंसिटिव हूँ। मुझे रोना, हंसना, गुस्सा सब कुछ बहुत जल्दी आता है। और मेरे जानने वाले यहाँ भी बैठे हैं, वो जानते हैं मेरा गुस्सा कैसा है। राइट। और जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। तो बेसिकली क्या था ना, आई वॉज ओवर एक्टिव चाइल्ड, बहुत एक्टिव मैं किड रही हूँ। तो होता ये था कि अब मुझे रियलाइज होता है ये क्यों था। तो होता ये था कि जैसे किसी ने मुझे डांटा, मुझे तुरंत रोना आ गया। अच्छा। और मैं रोने के बाद रोती रहूंगी, फिर मुझे रियलाइज होगा मैं रोती रोती दिखती कैसे हूँ। मैं तुरंत मिरर के सामने चले जाती थी और मैं खुद को नोटिस करती थी, अच्छा मेरी नाक लाल होती है, अच्छा मेरे होठ लाल होते हैं। फिर मैं खुद की एक्शन रिपीट करती थी ऐसे। गुड और नॉट, रोते हुए मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या सुंदर लग रही हूँ रोते हुए या नहीं लग रही हूँ। I used to do that. और मैं खुद somebody I think, I don't know whether you know him, माधव कोई आपके फॉलोअर शायद है, उन्होंने लिखा है आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अच्छा, हाँ यार मेरा गुस्सा है खतरनाक में, लेकिन शांत भी उतनी जल्दी हो जाता है। I just don't like bullshit. I just don't like bullshit. If someone speak wrong, I take action. क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बचपन से एक ही चीज सिखाई है, पापा मम्मी ने, कि बेटा कोई गलत बात करे ना तो उसको 100 जूते मार के आना, और अगर आपकी गलती है तो अपना सर नीचे करके चुपचाप थप्पड़ खा लेना उससे। तो ये चीज है।
तो इट्स गुड, क्योंकि मन में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव द सेम, कि मतलब आप मन में रख के उसको पकाते रहो तो कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर कि हाँ आपने, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और किसी लिए आ रहा है, तो वो बोल के खत्म करो, राइट? राइट। या सो लाइक ये तो फिर जब आप अपने आप को मिरर में देखती थी, और तो मेरे ख्याल से देखते देखते लगता भी होगा, अरे नहीं यार मैं अच्छी नहीं लग रही, चलो रोना बंद करते हैं। ऐसा भी होता था क्या? मुझे ना एक बात बताओ, मुझे ना मैं रोती हुई हमेशा क्यूट लगती थी। योर पापा इज अ ब्रेव मैन। यस, या सो तो आपको बहुत मजा आता था रोने में, कि भाई अरे यार अब तो मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ, मुझे क्या लगता था ना कि अरे मेरी नाक लाल हो गई, अरे हाँ मेरे गाल लाल हो गए, तो आई वाज वेरी मच फेयर एंड तो मेरे होठ लाल हो जाते थे। मैं बोली वाओ। ये सही है। ओके, उसके अलावा So और कोई basically my friend is saying कि my father is a मैन, या ब्रेव मैन। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो पार्ट है मेरी लाइफ का शायद लोग जानते नहीं है। मेरी 5 साल पहले किडनी फेल हो गई थी। ओके ओके। तो मेरी किडनी दोनों फेल हो गई थी, मेरे पापा ने मुझे किडनी डोनेट की। ओके। तो आई एम ऑन वन किडनी, माय फादर इज ऑन वन किडनी, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग योर फादर इज अ ब्रेव मैन। Yeah, I mean that's So actually yeah, something, yeah. So yeah. like we just hope that you're good now. Your health is absolutely amazing now, and you're doing good. Hmm. That's very Yeah. brave actually. That's actually very brave. Or you're also a brave person. आप भी बहुत brave हो. Like इतनी, I'm sure इतनी छोटी सी उम्र में you have to go through that pain. वो सब आपको झेलना पड़ा उस टाइम पे. I can Hmm. imagine all that उस टाइम पे. अभी तो हम बात कर सकते हैं, but उस टाइम का सिनेरियो ही कुछ और होगा. So Right. even people are saying that you are also a brave girl. You are also a brave girl, and your Thank dad. you, Gaurav. Yeah. Gaurav is a good friend. He's a moral also, and Okay. yeah. So it's nice. So apart from that, जो आपके बचपन की आपने बातें बताई, तो tell me about the future projects that you have. अभी आप क्या क्या करने वाली हैं? अभी नेक्स्ट तो मेरी 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए बात हो रही है, लेकिन अभी शूटिंग एक्सटेंड हो रही है, कैंसिल हो रही है, बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेदर एंड Yes, yes. ऐसी चीज। भोपाल में कुछ शूट शुरू है, तो Okay. 1-2 प्रोजेक्ट्स के लिए हो रही है बात मेरी। Okay, या okay, nice. So I am sure that आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से स्टार्ट हो. नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, इफ यू रिमेम्बर, आपने बोला माय था कि फ्रेंड इज सेइंग चॉकलेट बहुत पसंद है अनाया को। वाओ. सो तो आप कैसे करती, सूर्य नमस्कार करके पहले खा लेती हैं चॉकलेट, या बाद में खाती हैं? मैं यार कभी भी खा लेती हूँ, मैं इतनी मूडी हूँ ना, मतलब बहुत मूडी हूँ, मैं कभी भी खा लेती हूँ। एंड आई लाइक डार्क चॉकलेट विच इज गुड फॉर Yes, yes. हेल्थ। And I think my saying is that chocolate जब आप सैड हो तब खानी चाहिए, जब आप हैप्पी हो तब खानी Yes. चाहिए, जब आपको वर्कआउट करना है तब खानी चाहिए, जब आपको भूख लग रही है तो खानी चाहिए. तो आई हैव जब वेरियस आप वर्जन लड़की हो तब खानी चाहिए, लड़का हो तब खानी चाहिए, या कुछ और हो तो भी खानी चाहिए। you know what, my friend tease me कि तुम तो चाय के साथ भी चॉकलेट खा सकती हो. So I can understand जो आप what you are telling me, I can very well understand कि what चॉकलेट का जो फील है ना, एक जो चॉकलेट के लिए जो फील आता है वो कहाँ से आता है. So tell me, like आपने बोला you have found the writer in you, जो आपने कविता लिखी थी जाने से पहले, we want to hear that. Okay, I need to take out. I've written it on my phone. Yes. Just a second, give me a second. So you also write? I don't write, but then I like जितने भी जो आर्ट के जो जितने भी जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी जो जितनी भी चीजें होती है, मुझे बहुत मजा आता है उसको. Same here. हो गए, या जो लिखते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, पोइट्री अच्छा लिखते हैं, तो आई ऑलवेज एनकरेज देम कि और करो बिकॉज माई लव फॉर देम इज लाइक जो मैं शायद नहीं, आई डोंट नो वेदर आई हैव दैट और नॉट, बट मुझे अच्छा लगता है पढ़ के और सुन के. True. Yeah. I'm just sharing the live. I've shared before, but अभी या एक सेकेंड यार, मैंने निकाल के रखा था, वो लिख के रखा है ना, आदत नहीं. It's okay. You already mentioned that आपने अभी स्टार्ट किया है,
और वी कैन अंडरस्टैंड कि जो आपने लिखा होगा, यू मस्ट हैव, यू नो, आपको ऑलरेडी पहले से ही थम्स अप मिल गए हैं. सो आई थिंक ऑल दीज पीपल, इन्होंने आपका शायद कहीं ना कहीं पढ़ा है या यू नो कहीं हाँ, मैं देखा होगा. फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत Right. लिखती रहती हूँ खुद का. Right. किसी किसी को लगता है मैं कॉपी करती हूँ, बट मेरे अंदर का राइटर निकल आ जाता है. ये मैंने रियलाइज किया. हमेशा मैंने इस चीज को इग्नोर किया है कि यू नो. तो गाइस, इन्होंने कहीं से कॉपी नहीं किया, इन्होंने खुद लिखा है. ये आज ये खुद इसमें अब यू नो लाइव वीडियो पे इसको कन्फेस कर रही हैं कि इन्होंने खुद लिखा है. सो प्लीज डोंट थिंक कि इन्होंने कहीं से चुराया है या कुछ किया है. और जब तक आप इसको ढूंढे, मैं ये भी बताना चाहूंगी, लाइक यू नो टिल यू कैन जस्ट यू नो फाइंड, आप ढूंढते रहिए, तब तक मैं लोगों को एंगेज करके रखती हूँ. यू नो आई वांट टू टेल यू कि अगर आप ये लाइव वीडियो नहीं देख पाए हैं यहाँ पे, यू कैन ऑलवेज वॉच us on our YouTube channel Dream Chaser Media Production या फिर मेरे Insta. Yes. Hello शीतल जी. So I got it. Yes, you got it. Yes. See, मेरा जैसे खत्म हुआ आपको मिल गया. Yeah. Yeah. So yeah. जब मेरी वॉशिंग मशीन में मेरे पजामों के अलावा मेरे फैंसी कपड़े भी धुलने जाएंगे, पता नहीं वो अच्छे दिन कब वापस आएंगे. जब मैं और मेरी दोस्त डाइटिंग छोड़कर स्टार बाजार की पानी पूरी खाएंगे, पता नहीं वो अच्छे दिन कब वापस आएंगे. जब काम की तलाश में हाथ में बड़ा सा कॉस्ट्यूम और मेकअप का बैग लिए हम फिर से आराम नगर ओल्ड महाड़ा की गलियों में घूमने जाएंगे, पता नहीं वो अच्छे दिन कब वापस आएंगे. जब उन्हीं गलियों में किसी पुराने को एक्टर से टकराएंगे और चाय की चुस्कियों में उन सारे फेलियर्स को भूल जाएंगे, पता नहीं वो अच्छे दिन कब वापस आएंगे. जब अपने फोन पे सेल्फ टेस्ट ऑडिशन बनाएंगे और खुद का राज है ये समझकर टेक्स्ट पे टेक्स्ट लिए जाएंगे, पता नहीं वो अच्छे दिन कब वापस आएंगे. जब कभी अपनी प्रॉब्लम पे खुद ही क्रिप करेंगे और खुद ही आईने में देखकर चिल्लाएंगे, छोड़ यार, वक्त आने पर अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे, पता नहीं वो अच्छे दिन कब वापस आएंगे. जब सेट पे थोड़ा लेट पहुंचेंगे और हमारे ईपी को कोई स्टूपिड सा बहाना सुनाएंगे और हंसते हंसते अपने मेकअप रूम की तरफ बढ़ जाएंगे, पता नहीं वो अच्छे दिन कब वापस आएंगे. तो बेसिकली हम हमारे लाइफ में ना जिंदगी कल के ऊपर जीते हैं, है ना, कि कल मतलब कल ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी. मुझे लगता है ना कि हमको ना इन्हीं दिनों को अच्छा दिन मानना चाहिए, लाइक जो हम जी रहे, क्योंकि जो हमारे दिन बीत गए हमेशा हम उस बारे में सोचते हैं कि यू नो कि अरे वो दिन कितने अच्छे थे, हम ऐसा करते थे, वो हमारी यादें अच्छी थी. क्यों वो अच्छी थी? और जब हम वो जी रहे थे तब भी हम क्रिप कर रहे थे चीजों को लेकर. ऐसा हम लोगों ने महसूस किया होगा. हम हमेशा बोलते हैं कि पता नहीं यार वो अच्छे दिन कब आएंगे, यार वो दिन कितने अच्छे थे. तो मुझे लगता है कि ये जो पल अभी है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट, हमेशा श्री श्री रविशंकर भी यही कहते हैं, आई फॉलो देम, कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. अभी देखो आप, मैं और ये सारे लोग प्रेजेंट मोमेंट में है, दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी. लेकिन जब भी हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में इसके झोल में फंस जाते हैं ना, हम हमेशा टेंशन में घुस जाते हैं. हम हमेशा संघर्षों के बारे में सोचते हैं, गलत चीज के बारे में सोचते हैं. इससे बेटर है अभी जो मोमेंट है ना, जी लो, खुल के जी लो, और ऐसा सोचो यही अच्छे दिन है. यही व्हाटएवर यू रोड, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी एक्टर्स हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से समझते हैं जो आपने लिखा है, एक एक वर्ड उसका जो यू नो रियलिटी के कितने पास है, और क्या होता है, कैसे ऑडिशंस के लिए आराम नगर जाना होता है, यू नो एवरीडे कहीं से भी कॉल आ जाता है. तुम भी गई होगी obviously. So everybody knows, you know, जो भी चीजें हैं, whatever you wrote, you know, it's so true to reality. And you know your you know जो आपका जो जिंदगी को समझने का जो you know whatever you have learned till now, it is you know unlike your age, you know you talk so much big things, and you know you're so mature in your thoughts and all. So बहुत अच्छी बातें, you know, you have just spoken. बहुत आप, you are a brave girl, you just
told everybody that how bravely you fought something, and people जो कई लोग give up भी कर देते हैं उस time पे, बहुत sad हो जाते हैं, depressed हो जाते हैं, but looking at you, you're an inspiration to all of us, and just keep smiling, keep motivating, yes. Live the life that you are living right now. Stay happy, stay blessed, and thank you so much. You gave your valuable time, और आप online chat पे आई हमारे साथ, बहुत ही मजा आया आपके साथ. Same here यार, same here. ये क्या बोल रहा है मेरा दोस्त, एक गाना सुना दे. नहीं यार, गाना नहीं सुना सकती मैम, आप प्लीज एक सॉन्ग सुना दो. आपने आई थिंक यू बहुत अच्छा गाना गाती है, ये भी बोल रहा है, क्योंकि आई थिंक यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैट यू सेड दैट मैंने गाना भी गा लेती थी, और तो सुनाई दो, डजंट मैटर, हु केयर्स, यू जस्ट आप यार ये लोग पागल हैं, ये दोस्त है. तुम जानती नहीं हो, ये लोग बहुत बदमाश है. ठीक है, चलो सुना देती हूँ. बहुत अच्छा, प्यारी है. नंदी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, ठीक है. गाना. So you want to sing or you want? Yeah, okay. Yeah. गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी. I told you. He's laughing. मैं तेरे कुर्बान, झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान. I'm sure आपने बहुत entertain किया है इस गाना, यही वाला गाना सुना के. That's the reason they want you to sing live. That's the reason. I'm sure they're very happy. So I'm sure all the friends and followers of Anaya is happy now that that she has sung. Also, thank you so much, Anaya. Thank you so much for coming. And thank you. Yeah. So all the best for your future projects, and hope to see you soon. कहीं ना कहीं तो टकराएंगे. Hope to see you soon. Yes. Yes. जल्दी टकराएंगे. चलो, bye bye. Bye guys. Bye everybody. Bye Tejas. Bye. Bye.